In chemistry MCQs for lecturer chemistry, MD-CAT and NEET. First MCQs. What is the value for L, N and M for summation 3, 1 and 0? हमारे पास azimuthal quantum number, principal quantum number and मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए समेशन 3, 1 की वैल्यू जो है वो क्या होगी? हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए 1, 3 एंड 0. नेक्स्ट MCQs. What is the magnetic quantum number of the orbital 2p2? So plus 1 plus 1 and minus 1, none of these. Correct option is C minus 1. नेक्स्ट MCQs है हमारे पास कि the weight of silver displaced by quantity of electricity which displaces 5600 ml of O2 at STP will. हम इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन विल बी 54.9 ग्राम. नेक्स्ट MCQs है on electrolysis of dilute sulfuric acid using platinum electrode, the product obtained at anode will be. अगर सल्फ्यूरिक एसिड की हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एनोड पे हमेशा हमारे पास ऑक्सीजन आएगा. तो करेक्ट ऑप्शन इज द बी. नेक्स्ट है हमारे पास द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 5 if the temperature inside of said refrigerator is minus 20 degrees centigrade. Calculate the temperature of surrounding when it release heat. जब ये हमारे पास हीट रिलीज करेगा तो इसका टेम्परेचर हमारे पास हो जाएगा 31 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट है when an ideal monoatomic gas is heated at constant pressure, the fraction of heat energy that increases the internal energy of the gas is. तो अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो हीट एनर्जी विल बी 3/5. करेक्ट ऑप्शन बी. नेक्स्ट है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल एक्स इज डबल. ये जो हमारे पास एक्स है इसके डबल कर दें एंड दैट ऑफ वाई इज हाल्व. वाई की हम जो है ना हाफ कर दें. हाउ मैनी टाइम्स विल बी द रेट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस चेंज. हमारे पास R2 क्या बनेगा? हमारे पास R2 एंड R1 अगर कैलकुलेट करें तो हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, इधर डबल कर देंगे तो इसको 1 हाफ कर देंगे तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा R2 इज इक्वल टू 4.5 R1. नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन O3 हमारे पास O2 में चेंज हो जाता है तो इसको प्रोसीड एज O3 हमारे पास O2 एंड एटॉमिक ऑक्सीजन फास्ट है ये हमारे पास, और एटॉमिक ऑक्सीजन और अगर ओजोन के साथ रिएक्शन कर दें तो हमारे पास 2O2 स्लो रिएक्शन है. हम इसका एक्सप्रेशंस यानी कि कैसे कर सकते हैं इस इक्वेशंस को. फर्स्ट है हमारे पास के O3 की कंसंट्रेशन एंड O2 की कंसंट्रेशन -1. नेक्स्ट हमारे पास है कि रेट इज इक्वल टू के O3 की 2 एंड हमारे पास O2 की -1. तो करेक्ट ऑप्शन इज द बी. रेट इज इक्वल टू के O3 की पावर है हमारे पास है 2 और O2 की पावर -1 आ जाएगी. नेक्स्ट है which one of the following is an example of absorption. Ammonia in contact with water and anhydrous, calcium chloride with water, silica gel in contact with water, none of these. So correct option is C, silica gel in contact with water. Next MCQs. Movement of colloidal particle toward the opposite charge electrode on a passing electric current is tidal effect, cataphoresis,
Brownian movement, none of these. So correct option is the cataphoresis. इस प्रोसेस को हम कैटाफोरेसिस कहते हैं. नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ क्रिस्टलाइड फ्रॉम अ कोलाइड बाय फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड emulsification, dialysis, coagulations, none of these. So this is dialysis. Next, which of the following is used as a carrier gas in gas chromatography? Carbon dioxide, oxygen, helium, none of these. So गैस क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास कैरियर जो है वो हम हीलियम को यूज़ करते हैं. करेक्ट ऑप्शन सी. नेक्स्ट है व्हाट इज इल्यूएंट? लिक्विड solution that is derived from elutions, solute, none of these. तो हमारे पास है करेक्ट ऑप्शन बी, liquid solution that is a result from elution. नेक्स्ट है which of the following HPLC detector is used as a bulk property or general purpose detector? Electrochemical detector, UV visible detector, fluorescence detector, none of these. So correct option is the none of these. तो next है benzoene oxime is known as dioxime, cupron, cupric acid, none of these. So correct option is cupron. Next है in crystal field theory the energy gap between T to G and EG sets is denoted by हमारे पास 10dq. इससे हम डिटरमाइन करेंगे इन दरमियान वो. नेक्स्ट है द केमिकल फार्मूला ऑफ कास्टिक पोटाश जो है उसका फार्मूला है NaOH CaOH twice NH4OH and none of these. करेक्ट ऑप्शन इज द नन ऑफ these. हमारे पास कास्टिक पोटाश जो है उसका हमारे पास फार्मूला होता है KOH. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स? इट्स कंपाउंड इज EuAm, cadmium, none of these. करेक्ट ऑप्शन इज EU. EU हमारे पास है यूरोपियम. नेक्स्ट है गन मेटल इज एन अलॉय ऑफ. गन मेटल जो होता है हमारे पास कॉपर, जिंक और टिन का अलॉय होता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs. नेक्स्ट MCQs द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गैसियस स्पीशीज Mn3 पॉजिटिव, Mn क्रोमियम 3 पॉजिटिव एंड वेनेडियम 3 पॉजिटिव रेस्पेक्टिवली एज. तो इसका हमारे पास है करेक्ट ऑप्शन सी. अनपेयर इलेक्ट्रॉन मैंगनीज में 4, क्रोमियम में 3 एंड वेनेडियम के आयंस में 2. नेक्स्ट MCQs which of the following does not have the ground state configurations 1s2 2s2 2p6. अगर हम इन तीनों की बात करें तो तीनों में जो है 1s2 2s2 2p6 आता है. तो करेक्ट ऑप्शन इज द डी, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट है अ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इफ del H greater than 0, del H greater than less than 0, del G greater than 0, del G less than 0. तो एक्सोथर्मिक तब होगा जब हमारे पास del H है वो हमारे पास लेस देन 0 होगा, मीन माइनस में होगा. नेक्स्ट है इन केमोमेट्रिक्स मल्टीवेरिएट कैलिब्रेशंस इन्वॉल्व्स using multiple independent variable to predict dependent values. So correct option is A ही है कि using multiple independent variable to predict dependent variable. Next MCQs. Langmuir isotherm assumes multi-layer absorptions, uniform surface with the interaction between absorbed molecules. Gas behave as ideals, none of these.
So correct option is B, uniform surface without interaction. Next MCQs. A zero order reaction rate does not depend on temperature, pressure, reactant concentration, none of these. So correct option is C. रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस. नेक्स्ट है एंजाइम एक्ट एज कैटलिस्ट बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, चेंजिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन, नन ऑफ दीज. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी. नेक्स्ट है इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, energy is consumed to derive the reactions, the anode is negative, none of these. Electrolytic cell में हमेशा energy is consumed to drive the reaction. Next है silicons are primarily very important organic polymers, inorganic polymer, hybrid organic, inorganic polymer, none of these. So correct option C, hybrid organic inorganic polymers. Next MCQs. The Nernst equation relates electrode potential to pressure, temperature and concentration, surface area, none of these. So correct option is the B, temperature and concentration. Next in solvent extraction distribution coefficient is ratio of solute concentration in two phase, ratio of solvent used, ratio of extract to sample volume, none of these. So correct option A, ratio of solute concentration in two phases. Next MCQs in gas chromatography, the mobile phase is, अगर gas chromatography है तो mobile phase will be gas. So correct option is B. Next solubility of salt is decreased in presence of common ion, high temperature, high pH, none of these. तो करेक्ट ऑप्शन इज कॉमन आयन. कॉमन आयन जो है वो हमेशा सॉल्युबिलिटी साल्ट की जो है डिक्रीज करता है. नेक्स्ट है द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. द स्टेटमेंट इज अपॉन रूट्स लॉ, हेनरीज लॉ, क्लोर्स लॉ एंड नन ऑफ दीज. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, हेनरीज लॉ. हमारे पास ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये हमारे पास हेनरीज लॉ है. नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इज डिटरमाइंड यूजिंग बम कैलोरीमीटर, नॉन स्टैंडर्ड मटेरियल, एडियाबैटिक टेम्परेचर राइज, नन ऑफ दीज. हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर जो है हम यूज़ कर सकते हैं अ नॉन स्टैंडर्ड मटेरियल. नेक्स्ट है a fugacity is used to measure real gas behavior, ideal gas compressibility, equilibrium constant, none of these. So correct option is A, real gas behavior. Next है lattice enthalpy is always positive and represent energy absorptions, positive and represent energy release, negative and represent energy absorptions, negative and represent energy release. Lattice enthalpy always होती है हमारे पास positive and represent energy release. Next MCQs according to Hess's law, Hess's law जो होता है हमारे पास इंथाल्पी चेंज इज पाथ इंडिपेंडेंट. इंथाल्पी जो चेंज होती है वो हमारे पास पाथ इंडिपेंडेंट होती है इसमें, ये एसिस लॉ में. दिस इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है डीबेज-हक्कल थ्योरी इज यूज टू कैलकुलेट solubility of salt, ionic strength of solutions, Gibbs free energy, none of these. डीबेज-हक्कल थ्योरी जो हमारे पास है आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ की जाती है. नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियोमीटर टाइट्रेशन इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ करंट इन द रिएक्शंस, वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ टाइट्रेंट एडेड. करेक्ट ऑप्शन इज सी,
electrode potential as a function of titrant added. Next है according to orbital theory the bond of oxygen is, तो O2 है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हमारे पास, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2 क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और इसी तरह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन करें तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3 क्योंकि उसमें 3 डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट है फाइंड द मिसमैच। अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन होते हैं, अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं, गामा पार्टिकल न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल हाइड्रोजन एटम, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, अल्फा पार्टिकल न्यूट्रॉन नहीं होते, दिस इज मिसमैच। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन आइस, लेस देन ग्रेटर देन आइस, इक्वल टू आइस, ऑल आर पॉसिबल। आइस की जो हमारे पास डेंसिटी होती है वो 0 डिग्री होती है और वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, तो ग्रेटर देन आइस। नेक्स्ट है 1 ग्राम आयरन इज नॉट डेंसर देन 1 ग्राम कॉटन, सो दिस इज द फॉल्स, क्योंकि आयरन जो है किलोग्राम वो डेंसर होता है कॉटन से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी हमेशा ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होती है, तो इसमें हमारे पास HF है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन के दरमियान। आगे हमारे पास है लॉग ए बी, ए मीन ए मल्टीप्लाइड बाय बी है जो हमारे पास, ये लॉग का कानून है, अगर दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो उनके दरमियान लॉग आ रहा है तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि लॉग ए जमा लॉग बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन विल बी आएगा लॉग ए जमा लॉग बी, इधर नहीं दिया गया तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 58.5 AMU रिप्रेजेंट एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, मोलर मास। तो सोडियम क्लोराइड है, जितने भी सॉल्ट हैं उसमें क्या होता है, फार्मूला मास होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड हुज मॉलिक्यूलर मास इज 28, एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास CH है। मॉलिक्यूलर फार्म, इनमें हम मॉलिक्यूलर मास से फार्मूला भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे पास ये है कार्बन, एक कार्बन है तो 12 और 4 16, 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है 24 और 2 26, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है 24 और 4 28, ये बनता है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ मैटर इज, मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो हमारे पास एटम होता है। 12 किलोग्राम ऑफ कार्बन रिप्रेजेंट, 12 किलोग्राम है उसमें हमारे पास 12,000 ग्राम होंगे, वो 12,000 ग्राम ऑफ कार्बन, हमारे पास इधर 1000 है ना, तो इसको हम 1000 मोल कहते हैं, 1000 मोल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड, हनी, मिल्क, वाटर, AOT एंड NOT। करेक्ट ऑप्शन इज सी, वाटर। वाटर इस कंपाउंड है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। नेक्स्ट है यूराइन एंड ब्लड आर स्टडीड इन द डिसिप्लिन ऑफ, यूराइन एंड ब्लड जो हमारे पास है वो बायोकेमिस्ट्री से ही वो किए जाते हैं। इट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, सिंपल है, इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट केमिकल रिएक्शन। NaCl रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ टेबल साल्ट, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, ट्रू है ये। एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर्म ऑफ 100.50, हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी कौन सी हो सकती है, मीन इसको हम पावर फॉर्म में लिखें, तो इनमें से हमारे पास कोई भी इसको मैच नहीं कर रही, तो हम इसकी कोई भी खुद से बना लेते हैं हम, कि ये वाला जो इशारिया है हम इधर लेके आते हैं, तो हम क्या करेंगे 1005 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ की पावर, हम इसको लिख सकते हैं कि
-2। ठीक है, ये दिस इज़ करेक्ट। इधर हमारे पास कोई नहीं है, तो सी को हम जो है ना -2 कर सकते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट MCQ, व्हाट इज़ द मास ऑफ सब्सटेंस व्हेन डेंसिटी 4 किलोग्राम पर dm³ एंड वॉल्यूम 2 dm³। अगर ये हमारे पास डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम, मास विल बी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, 4 × 2 विल बी 8 किलोग्राम।